Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 15. Question number 9. Find the surface area and volume of cubical water tank of side 90 cm. Cubical tank है. Cubical tank means क्यूब की फॉर्म में है ये, जिसमें साइड गिवन है 90 सेंटीमीटर. Now we have to find out surface area and volume of the cubical water tank. Okay, so first we will write side of cubical tank equal to 90 centimeter. Then we have to find out surface area. Surface area of tank, that will be equal to 6a square. 6 into 90 into 90. Then we will get 6 into 81, after that 20, 48600 centimeter square. Then volume of tank, that will be equal to a cube. 90 into 90 into 90. 1230 आएगी. सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब. Now question number 10. Find the area of a tin sheet required to make a cylindrical container with its lid if the radius of base is 21 cm and the height is 28 cm. Find the volume of the container also. अब इसमें देखिए 21 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, हाइट 28 सेंटीमीटर गिवन है. आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उस टिन को बनाने के लिए जितनी यूज हो गई शीट वो फाइंड आउट करनी है. अगर आपको टिन के लिए शीट यूज करनी है देन वी विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. ओके, फर्स्ट वी विल नोट रेडियस of base equal to 21 centimeter and height of cylindrical container, that is equal to 28 centimeter. Now sheet required to make container will be equal to total surface area of container या फिर cylindrical container. Okay, total surface area of cylindrical container, that will be equal to 2 pi r plus h. 2 into 22 by 7 into radius 21 plus 28. 7 3 कभी भी गलती से ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको कैंसिल नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि बाई चांस ये वाला नंबर कट नहीं हो रहा और यहाँ पे कट होता है उसको कट कर देते हैं. वो हमें नहीं करना होता है. यहाँ पे क्या आएगा 44 into 3 into 49. Now we will multiply this. After multiplying this, then we will get 6468 centimeter square. Then volume of container. Volume of container, that will be equal to pi r square h. 22 by 7 into radius is 21 into 21 into 28.
7 3s are. Now we will multiply these. After multiplying this, we will get 38808 centimeter cube. This is our answer. Okay. Now question number 11. Find the amount given to the labor for digging a cuboidal tank 4.5 meter long, 3 meter breadth and 2.5 meter deep at the rate of ₹75 per meter cube. क्वेश्चन है कि आपको कोस्ट फाइंड आउट करनी है किसके लिए, जो लेबर को दी जाएगी अगर वो 4.5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप एक गड्ढा खोदता है। और गड्ढा किस फॉर्म में है, ये क्यूबोइडल टैंक में है। ये गड्ढा नहीं है, क्यूबोइडल टैंक है, सॉरी। डीप एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर क्यूब। और उसके लिए अगर वो 1 मीटर क्यूब खुदाई करता है तो उसको ₹75 दिए जाते हैं। पूरा खोदने के लिए कितनी उसको दी जाएगी रुपीस, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इसमें देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है। जब हम ऐसे खोदेंगे क्यूबोइडल टैंक की फॉर्म में, तो ये वाला एरिया चाहिए हमें। ये एरिया यानी क्या होता है हमारे पास, किसी भी सॉलिड शेप के अंदर जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो हम इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो ये यहां से समझ आएगा। ₹75 पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में है। अगर मीटर क्यूब में है ये मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी विल नोट क्यूबोइडल टैंक मेजरमेंट। Length is 4.5 meter, breadth 3 meter, height या depth 2.5 meter. Now we will find out volume. Volume of cuboidal tank that will be equal to length into breadth into height, 4.5 into 3 into 2.5, 4.5 into 7.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल गेट 33.75 मीटर क्यूब। नाउ कोस्ट इज गिवन, रेट 1 meter cube cost of digging that is equal to ₹75, 33.75 meter cube cost of digging that will be equal to, जब 1 से कंपेयर करेंगे हम तो ये ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 33.75 into 75, then we will get ₹2531.25. This is amount given to the labor. Okay. Now next question. Question number 12. 3 metal cubes of size 60 centimeter, 50 centimeter, 40 centimeter are melted and recast into a new cube. Find the volume of the new cube. Question है 3 क्यूब्स है, इनको मेल्ट किया गया है और एक नए क्यूब में फॉर्म कर दिया। आपको बताना है कि जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जो ये मेल्ट किया है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, ये तो इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हायर क्लासेस में आपसे पूछा जाएगा कि ये मेल्ट किया गया है और इसको दूसरी शेप में फॉर्म किया गया है। अगर कहीं भी मेल्टेड का आता है मीन्स आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, इसको ध्यान रखिए आप। साइड्स ऑफ क्यूब्स दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ
cube A cube, that will be equal to 60 into 60 into 60, 216,000 centimeter cube. Okay, then साइड्स ऑफ, ये फर्स्ट था, 3 क्यूब था तो ये फर्स्ट, देन सेकेंड क्यूब साइड दैट इज 50 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा हमारे पास, आप सेम एज का साइन यूज नहीं करोगे. ए क्यूब दैट इज 50 इंटू 50 दैट इज 125. आफ्टर दैट 30 सेंटीमीटर क्यूब. देन साइड ऑफ थर्ड क्यूब 40 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब 40 इंटू 40 64. after that 30 centimeter cube. Now volume of new cube will be equal to volume of first, second, थर्ड क्यूब. सबका सम करेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगा हमारे पास. 216 आफ्टर दैट 30 प्लस 125 आफ्टर दैट 30 प्लस 64000. जब इनको हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 405 आफ्टर दैट 30. दिस इज आवर आंसर. दिस इज वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. Now question number 13. There are 20 cylindrical pillars in a building. The diameter of each pillar is 50 centimeter and height is 90 centimeter. Find the cost of whitewashing the lateral surface area of all pillars at the rate of ₹2 per centimeter square. क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपको लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और पिलर किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. सो वी विल नोट मेजरमेंट. रेडियस ऑफ डायमीटर गिवन है, सो रेडियस ऑफ पिलर will be equal to diameter divided by 2. 50 by 2, 25 centimeter. Then height equal to 90 centimeter. Now total surface area, lateral surface area. This is for one pillar. Will be equal to 2 pi r h. 2 into 22 by 7 into radius 25 into 90. कैंसिल इसमें कुछ नहीं आ रहा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 99,000 डिवाइड बाय 7. अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर्स हमें फाइंड आउट करना है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर्स दैट विल बी इक्वल टू 14,142.857 इंटू 20. इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 10 एज इट इज आएगी ये. नाउ वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट. ये हमारे पास आया. आपको फाइंड आउट करना है cost of whitewashing. Cost of whitewashing 1 centimeter square is equal to ₹2. Cost of whitewashing
2828571.4, हमें 3 डिजिट के बाद लगाना था ये, सॉरी यहाँ पे आएगा डेसिमल 123, तो यहाँ पे आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2828571.14. Then we will get 565714.28 रुपीज. ये रुपीज में है हमारे पास. ओके. Now question number 14. 4 cubes each having a side of 12 centimeter are joined together. Find the surface area of cuboid so formed. Is this surface area equal to the surface area of the 4 separate cubes? देखिए हमें पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, और फिर ये चेक करना है कि जो ये क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है इसका सरफेस एरिया, और अगर हम सेपरेटली क्यूब लेते हैं उनके सरफेस एरिया के इक्वल है या नहीं है. ओके. तो इसमें आपको क्या समझना है, अगर आप क्यूब को ऐसे ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने में जो लेंथ है, ये देखिए लेंथ थी, ये लेंथ बन गई क्यूबॉइड की, और पहले क्या थी, ये साइड थी. ओके. पहले क्यूब था, अब ये क्यूबॉइड बन गया. इसमें सिर्फ लेंथ में डिफरेंस आएगा, ब्रेथ इसकी सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर, और हाइट भी इसकी सेम रहेगी. ओके. तो इसमें ये चीज देखने वाले, ये आप समझिए. बाकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 4 जा 48 लेंथ, और ये हो जाएगी ब्रेथ और हाइट 12 सेंटीमीटर. सो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी विल नोट क्यूब ईच साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. देन सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें फिर क्यूब सरफेस एरिया that will be equal to 6a square 6 into 12 into 12 864 centimeter square. 4 cubes surface area that will be equal to 864 into 4. 3456 centimeter square. Then length of cuboid that is formed by joining cube will be equal to 12 into 4, 48 centimeter. Then breadth of cuboid 12 centimeter and height वो भी सेम रहेगी इसमें 12 सेंटीमीटर. ओके. देन सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू, सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला, सरफेस एरिया कौन सा लेना है हमें, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. नाउ वी विल पुट वैल्यू 48 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 48.
नाउ वी विल एड दीज ऑल एंड मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास सेम आएगा अभी हमने किया था। अब इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 12 96 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताना था इज दिस सरफेस एरिया इक्वल टू द सरफेस एरियाज ऑफ 4 सेपरेट क्यूब, तो क्या ये इसके इक्वल है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नो। उसके बाद आप अपने आप से नोट कर लेना, द सरफेस एरिया इज नॉट इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द 4 सेपरेट क्यूब्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो 5:4:2 if the surface area of cuboid is 684 centimeter square, find the volume of cuboid। जब भी रेशियो में गिवन होता है वहां पे आप x लेके करोगे। सो इसमें हम देखते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, दैट विल बी इक्वल टू, इन सब के साथ x लेंगे, 5x रेशियो 4x रेशियो 2x। ओके, या फिर यहाँ पे कोमा लगा लीजिए, वो भी ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाइए। देन सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 2LB BH प्लस HL एंड दिस इज गिवन 684 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ we will put the value of length, breadth and height, 5x into 4x plus 4x into 2x plus 2x into 2x, sorry 2x नहीं 5x, 2x into 5x। now इनको करते हैं, 5 4 जा 20 x square plus 4 2 जा 8 x square plus 5 2 जा 10 x square, 20 plus 10 30, 30 plus 8 38, 2 इन और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 684 इक्वल टू में 684 है, 38 x स्क्वायर इक्वल टू 684। अब इसको आपको सोल्व करना है, 38 इंटू 2 76 x square equal to 684 and x square will be equal to 684 divided by 76। ओके, नाउ इसको कट करते हैं हम, 4 से करते हैं हम, 4 1 जा 4 9 जा, देन 4 1 जा 171 divided by 19 that is equal to 9। x स्क्वायर हमारे पास कितना आया? 9। x हमारे पास क्या आएगा? ये 9 आया, तो हमें ये स्क्वायर रूट लेना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास क्या आएगी? लेंथ 5 इंटू 3 दैट इज 15, देन ब्रेथ 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर में है ये सारे, then height that will be equal to 2 into 3 6 सेंटीमीटर। ओके, ना वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड that will be equal to length into breadth into height, 15 into 12 into 6, 90 into 12 that will be equal to 1080 centimeter cube। Now last question, a steel pipe is 35 centimeter long and its external diameter is 10 centimeter. If the thickness of the pipe is 2 centimeter and steel weighs 6 gram per centimeter cube, find the weight of the pipe। वेट ऑफ पाइप हमें फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा पाइप का, तब हम वेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए देखिए पहले हम नोट करते हैं,
length of pipe, that is 35 centimeter. Then external diameter equal to 10 centimeter. रेडियस क्या होगा फिर? रेडियस ये एक्सटर्नल है, ठीक है. एक्सटर्नल रेडियस 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर. और थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है. तो इंटरनल रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस हमें देखना है इसमें. दैट विल बी इक्वल टू 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दिए हैं. तो वॉल्यूम ऑफ होलो पाइप, यहां पे पाइप है, दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू हाइट, देन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. कैपिटल आर कौन सा है? एक्सटर्नल वाला ये, और स्मॉल आर ये. ओके. अब वैल्यू पुट करते हैं. 22/7 इंटू हाइट 35 इंटू आर, कैपिटल आर इज 5 प्लस 3, देन 5 माइनस 3. ओके. ये हमारे पास आएगा 20. ये कैंसिल कर लेते हैं. 7 5 हो गया. 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 110 इंटू 8 इंटू 2, 110 इंटू 16 दैट विल बी इक्वल टू 1670 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया. अब हमें वेट फाइंड आउट करना है. तो वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब स्टील इक्वल टू 6 ग्राम. वेट ऑफ 1760 सेंटीमीटर स्टील इक्वल टू 6 इंटू 1760. दैट विल बी इक्वल टू 10560. ये किस में आया है? ग्राम में आया है. अगर आप इसको केजी में चेंज करना चाहते हो तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 1000 से. देन वी विल गेट 10.560 kg. दिस इज आवर आंसर. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.